observing you. Somebody else is observing you. And he or she is also learning from you. The way you take your decisions, there are people who also learn from you. Like we have one of our kids from Gurukul, he's here. You can stand and say hi to everybody. We have Gurukul, so he just came with us. So now he's a small guy. He will not understand, probably he will not understand what I am speaking. But yes, when he sees that, oh, this is how we should speak to people, then he'll learn it. So whether we walk, talk, we deal economically, we deal socially, we deal politically, every act of ours is read and is calculated by each and every other person around us. So these qualities will not only help us being a good person, but it will also help us create a powerful community, a stronger community, a community with bonds, the community with values. अब आप सोच रहे हैं यार ये तो रटा हुआ सब लग रहा है ये स्टार्टर था, ठीक है? Now I want to hear from all of you. What do you think are the qualities that a leader should have, or these are the qualities that will make us a good leader? Yes, something from your side. You can raise your hand. If you, anyways, you will be audible, and we have the microphone coming to you as well. The student coordinator, you can raise your hand. He'll give you the microphone. We'll make it interactive. You don't have to worry. Yes, after that you can. Yes, please. He must be a team person. Team player. Very good. Big clap for him. He should be a team player. Means what quality should he have? He can be a team player. I mean to say, मेरे को पगार देगा तो मैं भी team player रहेगा. Somebody pays me 5 lakh rupees per month for something, I'll surely do it. But then what is the quality that he should have for being a team player? The microphone is already been shifted. Okay. Sacrifice. What a person requires? Sacrifice. Yes. Very good. Yes. He should be genuine. He should understand what is required, what is accountable for the next team players. Yes. He should know the needs, interest and concern. He should have need, interest and concern of what other person requires. Very good. He should have good listening qualities. Wow. जोरदार ताली. He should have good listening qualities. वो जो आजकल बनते हैं ना counselors, those who today's new job, you know what is the current new job? Best profession, even better than engineers, better than doctors, better than gangsters, better than the police. You know what is the best job today? क्या चाहिए? Yes, yes, somebody, please raise your hand. You can prompt from once you raise your hand, I can see yes. Because of her, I made this statement. So in her context, you can try to answer. Counselor, a psychiatrist. Because everybody has trust issues. What are the issues? Trust issues. Nobody trusts anybody. In school, there is a lot of competition. So what did students do? How they write answers? और कोई नहीं देखना चाहिए. Why we have trust issues? Because we have a lot of some kind of envy towards somebody. We think I should be the only. See, this is Western ideology. The Western ideology is that there can be only one person as one. All others should be second and third. But Vedic ideology does not go that way. We go in a cyclic ideology. Cyclic ideology means there are rains, then there will be grains, then the water will go back to the sea, it will come back again. You don't have to store or cry. Whatever will percolate will go in the wells. So you don't have to worry. So in linear economy, everybody is supposed to take anxiety even in old age. But unfortunately, we are currently living a linear cycle. So we all गंजे हो जाते चलते. देखा आपने कोडिंग करते करते नौकरी चाहिए. ओके, IBM, कॉग्निजेंट, पूरा करते बॉस, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद देन आई हैव अ वेरी बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड के साथ शादी करूंगा. ओ माय गॉड. और वो एकदम तगड़ा आंख लाल कर करके कोडिंग लिखता है. इन Oracle I worked 7 days 7 nights without sleep and I'm not exaggerating. 8वें दिन में एडमिट था, पर somehow वो प्रोजेक्ट गोलाई हो गया. तो मेरे जो प्रोजेक्ट लीडर थी, वैसे वो बुड्ढी थी. Oh my God, मैंने बोला ठीक है.
तुम्हें एलिमेंट लेके मुझे कुछ मिलना नहीं है। तो यू राइट कोडिंग कोडिंग एंड क्या होता है, आपके बाल उड़ जाते हैं। एंजाइटी लोगे तो बाल उड़ जाते हैं, और इसलिए देखो बंदों के बाल उड़ते हैं, बंदियों के नहीं उड़ते। इसका बहुत डीप अर्थ है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे वरना लीडरशिप का टॉपिक हाईजैक हो जाएगा। थोड़ा बता दें। देखो अब आप बोल ही रहे हो तो ले ले भाई, ले लो यार, तुम बुरा क्यों मानोगे, है ना। तो क्या जनरली गंजे लोग इस टॉपिक पे बोलते नहीं बट आई टेक लिबर्टी विद ऑल ऑफ यू, आप लोगों से, ताकि मुझे भी ऐसा लग रहा है यस वापस एडमिशन ले लेना चाहिए। तो आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, हाउ डू वुमन, इट इज अ नेचर, यू कैन, बहुत सारे यूट्यूब में है ना, मैन एंड वुमन साइकोलॉजी पे बहुत सारा आता है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। वुमन का क्या होता है ना, दे लाइक टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम because actually they are not interested in the solution, they are interested to make sure that everybody is involved in the problem. And men, they have ego, ओए मुझे बोल दिया, ओए मैं करूंगा, चलो जो करना है करेंगे, पत्थर उठाने सब करेंगे, भाई हमको बोल दिया। इसलिए देखना शादी के बाद वो बहुत पॉजिटिव रहता है, बीवी को मेरी भी, हाँ किसी और से बात किया कैसे। So women, they like to describe problem, men they like to solve the problem. ऐसे में उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। But anyways, don't worry, that is also good. बेचारा अंदर से खुशी मनाता है, बाद में दिल टूटे, तड़प तड़प के इस दिल से। If you go to YouTube, अगर आप YouTube पे जाते हो, there are two types of million varieties of songs and videos and all that. But if you categorize two categories, one is romantic song and another is breakup song. You know, when the romantic song बहुत भी hit हुआ तो 25 million views, 30 million views, और sad song, breakup song 895, 970 million views. हाँ, इतने लंबे लंबे रहते हैं। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, अबे नमूने तू इधर ठीक से नहीं जिया, तो तारों में जाके क्या करेगा। तूने कुछ करामाती किया नहीं। So, women, you will see that. I'll give you another example because somehow he has asked. ये थोड़ा बदमाश लड़का है, इस पे ध्यान देना। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट गिरता है, फॉर एग्जाम्पल, सर कैन आई गेट दैट बॉटल इफ यू डोंट माइंड, जस्ट बॉटल, जस्ट आई लाइक डू दिस एक्सपेरिमेंट, यू कैन बी हियर, लाइक दिस इज द बॉटल, लेट अस से कांच का ग्लास है, ठीक, फॉर अ मोमेंट, एंड लाइक मैं बात कर रहा हूं और ये स्लिप हो गया, तो व्हाट वी डू, व्हाट डू मेन डू, okay, now I'll tell you what women do, I cannot do it with this bottle, they're like टूटे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना नाराज मत होइए, ऐसी थोड़ा जोक मार, ऐसे तो मैं कभी नहीं करती, मैं तो पति पे ब्लेम करती हूँ। Just joking, but even in joke I have told you the truth. So yes, because you know, देखो हर एक का एक नेचर होता है जिसके वजह से वो जाना जाता है। Everybody has an identity. So when you see a sadhu, what you should only expect is truth. जिस दिन साधु झूठ बोले उसका साधु का लेवल खत्म। अगर कोई बिजनेसमैन है तो फॉर श्योर वो तुमको उल्लू बना रहा है। जिस दिन वो सच बोले वो बिजनेसमैन कैसे बचेगा, वो साधु हो गया। We have two businessmen here, they are trustees of our here. We are opening a Gurukul in Amritsar and they have come all the way to meet with me and talk so that we could talk in our driving time. Yes, so coming to our point, we have many more things to learn. This leadership is something, as yes, somebody wanted to answer here, is what psychiatrist I was talking, because of her we came to this point. The best job is psychiatrist, because in America, 1/3 of the people, they have official psychiatrists. And 1/3 of the psychiatrists also have psychiatrists. Oh my God. सोचो उसका क्या हाल होता होगा। Yes, he wanted to say something. Yes, please. Mike, आपका हो गया? किसको कि somebody had the mic, right? Leadership. When I talked of qualities of leadership, somebody wanted to. Yes. Yes, please. He should learn from his mistakes.
and improvise the team mistakes. Very good. He should learn. Big clap for him. He should learn from his mistakes. First of all, he should admit his mistakes. If you don't recognize your mistakes and admit, it is very difficult. So admit your mistakes and nobody falls short. I'll tell you a story of Mahabharata where Bhim happened to, he was a Kshatriya and it is said he had power of 10,000 elephants in him. He could uproot trees, especially in the Agyatavas for Draupadi. Somebody tried to trouble Draupadi. He lifted all the trees and उसने चटनी बना दे पूरे आर्मी का. He had that power. But although being with such power, he was once walking and somebody किसी को तो धक्का लग गया. वो गिर गया. He immediately lifted his hands. I'm really sorry. मेरे वजह से हुआ and I should have been little away. That is a person. Where a person knows that his power is not to crumble and trumble others. It is to help others. It is not to trouble others. So we should know our mistakes. We should know our, even if we are wrong, even if we are right, sometimes for a betterment of society, we can take a stand, back stand. We can keep ourselves behind. Yes. Yes, any last point? Somebody? Bolna hai? Yes. Okay. So we go to our slide next, sir. One more click. Bas. Udhar aayenge. First and foremost thing that a leader should take care is of time. Now when I say time and when you hear time, there is difference. What do you understand when I say time? Oh my God, we should be on time. You talk of this digital watch. I do not talk of this digital watch. That is called punctuality. Punctuality is one of the, you can say, even if leader is not punctual, but if he is really a leader, people will wait for him. But yes, we should be punctual. That is there. But I have not come here to give you some generic thing. I will give you something which none of you have access to. Even Einstein did not have access to those things. And I am not joking. By God's grace, by grace of my spiritual master and all my teachers, I could learn these things and have implemented it. You need to live in a time frame where you can use maximum energy and perform maximum. Use your potentials to your maximum. How do you do that? First of all, let me know what do you know about time. Please circulate the mic so that we can hear. Raise your hands. You should not feel shy. It is not that we are doing some competition. Yes, he wants to speak. Yes, you can give him. Basically, time. Everybody has 24 hours. A laborer is working 8 hours and he is earning 800 rupees. And a person who is working in other companies, he is using his time and energy in certain different way. That what matters is they both are putting the hard work, but the matter there is the energy. The energy he is applying. He is controlling his energy. He is not putting energy. Physics ना पूरा physics पढ़ के आया ना बैठ नीचे आयो ऐसा लग रहा था प्रोफेसर एक क्लास में बैठे and time is energy and there can be friction, static friction and kinetic. चलो कोई बात नहीं. This is something that you have experienced and you don't know how to formulate it because modern education has never told you. No motivational speaker will tell you because motivational speaker अपना check लेके भाग जाता है. But I'll tell you. Einstein, he came up with a theory called theory of relativity. All of you know that? Yes. But do you know what is theory of relativity, even what he wanted to say? Yes? Time is relative. He basically, with all his experiments and all his so-called calculations, he wanted to prove that time is relative. The time for him, the time for him, the time for him, and the time for me are all different. The digital clock is going on. But what is this time frame? I'll give you an example. Einstein gave this example. So let us give that credit to Einstein. He said, when a girlfriend and a boyfriend sit in the park, they sit together. And they're talking and chit-chat. Can you watch? Oh. And then he's like this. Oh, yeah. And then he removes his wallet. See, boys means wallet. Khali hath nahi jana, maar khayega. So, and then there is good chit-chatting and they speak for 5 hours and 6 hours and the hostel time is over and then there is a call, hey, gate band ho raha hai, jaldi aao. And they say, oh my God, hum log kitna 5 minute bole na. And they go, oh. And then they go. Einstein gives this example. And then he says, take that same guy, jisko 5 घंटा 5 minute laga. Take that same guy. Oh, scientific आदमी था. Einstein will not do any normal experiment.
He says take the same guy, because scientists means they treat humans as machines. He says take the same guy and heat a copper plate at a degree of 100 degrees centigrade and just place him for a moment. And you're like, कितना देर से बैठा था, कितना देर से बैठा था. This is what Einstein says. So this is relativity. There exactly 5 hours into 60 minutes, 300 minutes appear to be 5 minutes, and here actual a second appeared to be an hour. I'll give you another example. This is my example. Those were Einstein's example. Now let us come to our example. We all have been in history classes. 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ा था ना? मैं क्लियर कहता हूँ हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फ्रेंच हमारे हैं नहीं, इंग्लिश हमारे हैं नहीं. इनकी रिवॉल्यूशन को हमको अचार डालना है, गांधी जी ने नमक खाया तो हम तो घर में भी खाते थे. चलो बोला है तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम में 10-10 मार्क्स का आता था, घोक लेते थे. बट यू नो हिस्ट्री क्लास वाज द मोस्ट बोरिंग क्लास, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री का टीचर इतना धीरे से बोलता था कि खुद कन्विंस नहीं था कि ये हुआ है. एंड देन उसमें हम जो नॉर्मल स्कूल से आते हैं उनका इंग्लिश कच्चा रहता है, और वो मैडम कुछ तो हिस्ट्री के टर्म्स यूज करेगी, वो इतने सारे लोकेशंस के नाम जहां हम घूमे नहीं है, इतने सारे आदमियों के नाम जिनको हम जानते नहीं है. अरे हमको हमारे पापा और पापा के पापा का नाम भी याद नहीं रहता. ये तो उधर के उधर, और 4 माउंट बैटन ये आके यार जो भी आया गया ना, हो गया. सो in our history class, when you attend history class, you look at the clock. कैसा जाते हो? ऐसा रहता है सर. सेकंड का कांटा. टुक. ए क्या हुआ? टुक टुक. ओह, अब मैथ्स का क्लास, जिसको मैथ्स बहुत अच्छे इक्वेशंस, हाँ यस यस यस, x स्क्वायर y स्क्वायर, टंग, अरे बच गया. ज़ूम, 1 घंटा खत्म. So this is called relativity. Now when you work in a very, what do you say, a time frame, you create your mind in a time frame. Okay, अब ये कैसे होता है? जैसे आपने अगर अभी 2022 चल रहा है, लेट अस से आपने कोई 2015 का कोई गाना गा के दिखा सकता है, 2015 का गाना, कोई भी पॉप सॉन्ग, नॉर्मल सॉन्ग जो भी है, एनीबडी? 2015 कोई नहीं गा सकता. ओ माय गॉड, मैं ही सेंटली लोगों में आ चुका हूं. चलो 2010 का कोई गाना नहीं आता है? एनीबडी रेज योर हैंड प्लीज. एक लाइन ही बोल दो भाई, मुझे लगता है तेरे साथ ही बात करना पड़ेगा. यस यस, जल्दी जल्दी. हाँ, ओए उनको दो, जोरदार तालियां. यस, गाओ, कोई दिक्कत नहीं. जल्दी, टाइम नहीं है. ए क्यों मारो नहीं, जल्दी. हाँ गाओ. ए प्लीज. यस. सिंगर है नहीं. ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ. sorry ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 weight ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ. अरे कुड़ी दा 47 वेट है, मार खाएगा. पंजाब की कुड़ियां लस्सी पी के हैवी होती है भाई. तो एनीवेज, नो प्रॉब्लम. व्हेन यू हियर अ सॉन्ग ऑफ अ सर्टेन एरा, लेट अस हमने 2010 का कोई सॉन्ग सुना, आपका माइंड कौन से फ्रेम में चले जाता है? 10 के फ्रेम में जाता है. अगर आप 2002 में चले जाते हो, 2000 या 2002 के गाने सुनते हो, व्हाट हैपेंस? योर माइंड रीचेस टू दैट फ्रेम. व्हेन यू गो टू 1995, दुम पिचक दुम पिचक दुम दुम पिचक दुम, इमीडिएटली वहां चले जाते हो. नहीं तभी मैं बच जाता, आप लोग शायद आप आए ही नहीं थे. एंड जब 80s में जाते हो, ओ साथी रे तेरे बिना, यू गो टू द 80s, राइट सर? अगर आप ये सुनते हैं तो आप 80s में चले जाते हैं. आपका माइंड फ्रेम, आपका सोच उस पैटर्न में चले जाता है. सो व्हेन यू, नहीं उसको क्लिक करो, व्हेन यू कैरी योर टाइम फ्रेम, आपका टाइम का माइंड से कनेक्शन होता है. क्योंकि मैं माइंड मेरा अगला सब पॉइंट है, इसलिए मैं उसको तभी इसको और एक्स्ट्रापोलेट करके बताऊंगा. योर माइंड एंड टाइम हैज कनेक्शन. आपको मैथ्स अच्छा लगा तो टाइम फास्ट भागा, और अगर आपका माइंड इंटरेस्टेड नहीं है तो टाइम फ्रेम कैसा हो जाएगा? वही टाइम का इफेक्ट, घड़ी का टाइम वैसे ही चलेगा. टाइम इज एन इफेक्ट. सी देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन गीता and one of them is time. आप टाइम के वजह से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं, बट
वो हमारा फिलोसफी का सब्जेक्ट नहीं है। सो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जब आप अपने टाइम को अपने फ्रेम को, मेंटल फ्रेम को टेम्पररी से इटर्नल लेके जाओगे, द मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम यू कीप, the more easier things you can do, and you can do more things, because as a leader you have to do multitasking. You have to do multitasking. like आप में से भी कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है तो आपको पढ़ाई भी करना है, पापा के ताने भी झेलने हैं, मम्मी का सब्जी भी लाना है, मेहमानों को देखना है, कॉलेज में प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है, एचओडी को रिपोर्ट करना है, फिर टीचर हो जहां पे आपको वो मिलना है मार्क्स, टर्म वर्क, वहां जाके जी भी करना है, सब करना है. तो यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग. इवन व्हेन यू आर इनटू कॉर्पोरेट फील्ड, sometimes you are not just a coder or a developer or a DBA, you are sometimes a team leader. So when you are team leader, you have to also hear the complaints of your colleagues. You have to address their issues. जैसा भी किसी ने बोला कि we have to cooperate and have good hearing. तो good hearing के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए ना. टाइम तब होगा जब उसका इफेक्ट आप पे कम होगा. ये बहुत अलग साइंस है. आपको ये एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिकली करने लगेंगे, so that is why even today we were speaking to our sir that when you have goodness in you, you can do multitasking because टाइम आप इटर्निटी तक लेके जा सकते हैं. इसलिए इसको वेदों में बोलते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमया. हियर एवरीथिंग इज टेम्पररी. तो इस टेम्पररी में टॉसअप होते रहोगे ना, उससे अच्छा दूर से देखो, सब दिखेगा. So this is first point that you should do is that broaden your pattern. Take your time frame to eternity. How to do that? We will go at the end of the session. Don't worry. क्योंकि अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा. Next quality. Next quality is that optimize the use of your mind and intelligence. तो anyways elaborately हमने mind के बारे में पिछले कॉलेज में बताया. तो mind क्या है? Mind स्टोर हाउस है. क्या है? स्टोर हाउस. स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज एंड इमोशंस. व्हाट इज माइंड? Storehouse of memories and emotions. And intelligence is rational. क्या है? Rational. Rational means rational thinking. उसके पास जो इनपुट है उसके हिसाब से वो आपसे बात करेगा. जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको कितने आवाज आते हैं? जैसे आप बहुत सारे लोग इधर सेमिनार में आए तो पहले आपको मैसेज गया होगा आपके ग्रुप्स में या कॉलेजेस जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है. तो यू गॉट द मैसेज. How many voices came to you? Yes. कितने आवाज आए आपको अंदर से? हाँ जैसे कोई तो बोला प्लीज. जाऊं ना जाऊं, 2 आवाज आए. ये जाऊं ना जाऊं एक ही क्वेश्चन एक्चुअली, एक ही आदमी का आवाज आए. और यस, तो आपका एक्सपीरियंस है कि चलो सेमिनार में जाने से कुछ तो फायदा होता है, लेट अस गो. दूसरा आवाज, हाँ जो रिफाइन है उसको सुनाई देता है. सबका आवाज आता है, सुनाई देने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. रैशनल वॉइस आया था, सुन जाएगा ना, अभी भले ही बोर होगा लेकिन फायदा होगा, कुछ तो काम का मिलेगा. देयर इज नो लॉस. कचरे में भी सोना मिले तो ले लेना चाहिए. यहां कुछ हो रहा है, लेट अस टेक समथिंग. यहां तो अच्छा हो रहा है, सो लेट अस टेक समथिंग. आपका सेकंड वॉइस है. थर्ड वॉइस ईगो. मेरा कॉलेज है, अगर हमारे कॉलेज ने कोई गेस्ट बुलाया है तो हमें जाना चाहिए. पंजाब का इज्जत का सवाल, वो होता है ईगो. ये हो गया थर्ड वॉइस. फोर्थ वॉइस मैं आपको बताता हूं फोर्थ वॉइस कहां से आता है. वो जनरली बहुत कम लोग सुन सकते हैं. आपने कभी किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया है जो गलत है और आपने कर दिया है और आप करने जा रहे हैं, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? कुछ तो गलत काम करने आप नहीं करने जा रहे हैं. बहुत सारे. तो मालूम है फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आपका हैंड शिवर करता है. देखा आपने? ऐसा लाइक समझो आपने किसी को मारने जाना है, कोई बोलता है चलो जाना है. नहीं. Why? Because there is something, जो सुप्रीम लॉर्ड है, he is also in our heart, called परमात्मा. वो तो आप सब जानते हैं. So he does not allow you to do any sinful activity. उनका भी एक आवाज रहता है, नहीं. जैसे आप कोई समोसा खाने जा रहे हो, आपके यहाँ क्या है? कुलचा, छोला, और क्या खाते हैं यहाँ? लस्सी, नान वान जो भी है. तो लेटर से आप लस्सी की बात करते हैं क्योंकि लस्सी जो है वो थोड़ा मुझे भी हजम होता है. मैं कुलचा समझ ही नहीं पाया है क्या.
तो कल मुझे पहली बार कोई खिलाने वाला है तो कल ट्राई करेंगे, तो समझ में नहीं है ना, उसका जोक ही नहीं बन पाएगा। तो लस्सी लेटर से आप लोग लस्सी के लिए थोड़ा क्रेविंग रखते हो, तो जो ही आप लस्सी के शॉप से जाते हो, माइंड क्या बोलता है? वो लस्सी बुलाती है, आज अरे जा रहा है। तो हमारा जो ये टंग है वो आगे खींचा जा रहा है, हा? तो ये खींचे जा रहा है आपको और आपको जा रहा है। जैसे हमारे क्लास में कोई सुंदर लड़की आ जाए, तो कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई में चिपकू हो, फिर भी वैसे देखता है, एक नजर तो घुमा ही लेता है। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने इधर का, ठीक है। ऐसा कहते हैं स्त्रियो चरित्रम देवो न जानामि किम मानुषम, उधर का हमको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो वो कितना भी रहे तो उसका जो हुक है वो उसको पुल करेगा। तो लस्सी क्या करेगा? आपको पुल करेगा। तो आपका माइंड फर्स्ट टॉक क्या करता है? माइंड, जाऊं क्या, चलो निकलते हैं, लास्ट टाइम लस्सी बहुत अच्छा बना है, पिएंगे। तो माइंड बोलता है। इंटेलिजेंस बोलता है एक मिनट, पॉकेट में हाथ लगा, पैसा है, उतना है, रिटर्न जाने का पैसा है, फिर मूवी देखने जाना उसका पैसा है, फिर क्यों जा रहा है? तो फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उधर डालूं या इधर डालूं। फिर दोनों में एक जीतता है, माइंड और इंटेलिजेंस में। तब तक अंदर से ईगो आता है, ओए और लस्सी दा हमारा बर्थ राइट है, इसको हम पी के रहेंगे। तो आपका ईगो आगे आ गया। और फिर फोर्थ आवाज आता है, वो आवाज एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उन्हीं को सुनाई देता है, जो बहुत इसमें मतलब अगर आप जिस दिन अपने आप को इन तीनों आवाजों से अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे तो फोर्थ का सुनाई देता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सुनाई देता है। तो इस प्रकार एट एवरी एक्ट दैट वी डू देयर आर 4 वॉइसेस। सो व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर माइंड एंड इंटेलिजेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाई आई यूज दिस वर्ड ऑप्टिमाइज, बिकॉज यू शुड नॉट यूज इट मैक्सिमम। मैक्सिमम में भी यूज मत करो, क्योंकि मैक्सिमम में अगर आप गलती करते हो आपको रिकवर करने के चांसेस नहीं है। सो ऑप्टिमाइज मीन्स यूज देम इन बैलेंस। इवन भगवत गीता सेज बुधा भाव समन्वितः, कि अर्जुन तुम कोई चीज अगर जानना चाहते हो तो बुधा मीन्स इंटेलिजेंस, भाव विल कम फ्रॉम माइंड, इनका समन्वय करके करो। यानी जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे डिसीजन जो है ना वो इमोशन से भी जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि वी जस्ट आर वेरी रिजिड एंड यस दिस इज हाउ यू शुड डू एंड खत्म। भाव से भी जुड़े होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सम डे और द अदर वी विल रियलाइज दैट वी टुक डिसीजंस बट वी डिड नॉट अचीव एनीथिंग, वी आर सोशली नोबडी। ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मालूम है जिन्होंने फुल पैसा कमा लिया एंड दे हैव नोबडी अराउंड देम। So as a leader, you should know that if you have to optimize your mind, you need meditation, and if you want to optimize your intelligence, you should read good books, especially books which will sharpen your intelligence. जैसे शार्पनर पेंसिल होता है ना, तो इसको रेगुलर में डालो, नहीं तो क्या होगा, हमारे इंटेलिजेंस का इनपुट सब आसपास से रहेगा, दोस्तों से, जो ऑलरेडी जिनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो हमारा ग्राफ कहां जाएगा? नीचे। Like I'll tell you, if you want to be rich, how you will become rich? बताओ। If you want to be rich, how will you become rich? If you want to be topper, let's say आपको क्लास का टॉपर बनना है, तो आप टॉपर कैसे बनोगे? बस इसका मेरे को सूत्र बता दो। By God's grace. ग्रेस इज ऑलवेज देयर, यस। प्रैक्टिकल में भी कुछ हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं? यस। माइक प्लीज एक एक रेज करिएगा, माइक जो इधर से रेज कर रहे हैं इनमें देना। और देखो वहां पीछे अपना हीरो है, अपना हीरो उधर है। यस। How will you become rich and how will you become intelligent or topper? If you want to be rich, अमीरों के साथ रहो, और if you want topper तो टॉपर के साथ रहो। बस बस जोरदार ताली दो इसके लिए। Very simple. You associate with such people. आपको रेसलिंग का कुश्ती मैन बनना है, आपको कुश्ती करना है, तो आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो कुश्ती कैसे करोगे? ओ नहीं मत मारो। कुश्ती करना था आपको बॉडी बिल्डर्स के साथ है ना, दिन रात अखाड़े में रहना पड़ेगा। सो यू हैव टू एसोसिएट। इफ यू वांट टू बी रिच, all the ideas of becoming rich are with the rich. They know how to do business,
how to do trade, how much to donate, how much to hold back, how much to keep as reserve. You have to deal with them. If you want to become topper, then what do you have to do? उस घोकू के साइड में बैठो, देखो। You know, when I was in 5th standard, मेरा handwriting ऐसा था, scribbling वाला होता है ना ऐसे सा। तो एक दो बार टीचर ने धुलाई किया था, तो फिर इधर कहीं लग गया था, तो मम्मी ने बोला क्या लगा है तुम्हें? अब मैं कैसे बोलूं टीचर ने मारा? फिर घर वाले भी मारते थे पहले। अगर उनको पता चला कि टीचर ने मारा मतलब तुम बदमाश हो, तो आज की तरह नहीं, हाउ डेयर यू टच माय किड, ऐसा नहीं होता था। अगर पता चला ना कि टीचर का मार खाया पहले, तो इधर से भी मार मिलता था। बट समहाउ मदर बोले यहाँ क्या लग गया? तो मैंने बोला ऐसा हो गया, तो मैडम ने, तो मम्मी को समझ में नहीं कि ट्यूशन लगा के भी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक हो। तो मम्मी ने मुझे आइडिया दिया, बोले काम करो, क्लास में जिसका बहुत अच्छा है ना उसके साइड में बैठो, देखो कैसे लिखता है। एंड आई डिड दैट। मैंने टीचर को बोला मैडम ये अच्छा है, इसका बैठूं क्या? हाँ हाँ, तो कुछ कर दिया मैडम ने, क्लासरूम में रोल नंबर्स वाइज कुछ तो कर दिया। और वो ना ऐसा लिखता था, एक जीप बाहर निकालता था, और ये उंगली है ना, ही यूज्ड टू कीप इट लाइक दिस ऑन द चाइना पेन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज चाइना पेन। सर आप लोगों ने पहले चाइना पेन यूज किया? एक चाइना पेन आता था ऐसा, तो मैंने फादर से चाइना पेन मंगवाया, उसकी तरह मैंने भी तो हैंडराइटिंग सुधरने के बाद मैंने ये वाला अंदर कर लिया, लेकिन उसकी तरह नहीं, लेकिन यू नो समवेयर और द अदर आई कुड प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी नाइसली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू engage our mind and intelligence in a right way, you have to choose right leaders, and you don't have to imitate them, but you have to follow them. Okay? मैं एक्सट्रीम की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसको एक्सट्रीम में लेके जाओगे, then your integrity will be questioned. You know what is integrity? How many of you know what is integrity? What is behavior? What is behavior? अगर हिंदी में भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। What is behavior? आपका स्वभाव, आप कैसे डील करते हो लोगों से। वेरी गुड। व्हाट इज कैरेक्टर? जो आपके अंदर है और जो बाहर निकालते हो उसको बोलते कैरेक्टर। व्हाट इज इंटीग्रिटी? अब माइक देना, अब ऐसा जवाब नहीं आएगा, मैं जानता हूं। माइक देना। इंटीग्रिटी, ये देखो वो है हमारे, इनको देना, ये भी है सर भी, चलो इनके बाद उनको दे देना। शर्मा रहा है बेचारा। यस, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाह वाह, जोरदार तालियां। गूगल नहीं मार रहे हैं तुम लोग? अरे आजकल है ना, बता रहा हूं, गुरु लोगों की कोई जरूरत नहीं है, सब गूगल पे अवेलेबल है। बट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड गुरु? बताओ। यस, एक्चुअली देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। रेस्टोरेंट के खाना और माँ के हाथ के खाने में भले ही टेक्निकल फर्क ना हो, सेम बनाए माँ, पर माँ के हाथ का खाने में ममत्व होता है, अपनत्व होता है, देने वाले की इच्छा बड़ी तीव्र होती है। रेस्टोरेंट में आपको बटवा देखते रहते हैं, और है क्या इसके पास? सर वुड यू लाइक टू हैव वन मोर प्लीज? उसको तुमसे प्रेम नहीं है, बहुत ही कर रहा है, मतलब वो तुमको लूटने आया है। अब मम्मी जो कान पर खा ऐसे जाएगा तू, उसमें ममत्व होता है। यस, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड गुरु आल्सो। बट वेरी नाइस आंसर। व्हाट इज इंटीग्रिटी? Integrity is you, whatever you do when nobody watches you, that is called integrity. When you go to extremes, there is great chance that you lose your integrity, and integrity is lost, your identity is lost. So to maintain the integrity, associate with good people and be in an optimized situation. Next, third, you have to do the best. Actually मैंने PPT बनाया नहीं था, मैंने कल ऐसे दिया, बाद में मुझे अभी पता चला कि ऑडिटोरियम है, तो मैंने बोला क्योंकि लोग दूर बैठते हैं, दे शुड सी समथिंग। सो व्हाट डज इट मीन टू डू द बेस्ट? एज अ लीडर यू शुड नॉट बी ग्रीडी। दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट बी एम्बिशियस। यू आर गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इट मीन्स टू बी एम्बिशियस? एम्बिशियस मीन्स टू अचीव समथिंग, बट ग्रीडी मीन्स you are ready to put anybody on fire just to achieve it. Means you are insensitive, because greed has no end. Like आपने वो स्टोरी सुना है ना, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने क्या किया? उनके पास सब कुछ था, देवी देवता तक उनकी इच्छा से काम करते थे। अब क्या चाहिए? बोलते नहीं मैं ही विष्णु हूं। वो लास्ट में वो आया तो भगवान बोले इधर
वो एक ही होता है, दो नहीं होते। ऑपरेशन टेबल पे लेके फाड़ दिया और ब्रह्मा जी को बोला अरे कैसे वरदान देता है, बाहर नहीं, अंदर नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कुछ तो रहेगा, कुछ तो कोटा में रखा करो। कितना प्रेशर आता है सब ऑपरेशन करने में। सो देयर इज नो एंड टू ग्रीड, बट वी शुड बी एम्बिशियस. So there is a verse in Gita, you can repeat after me. This is very nice verse and it is practically applicable to everybody. Just repeat after me. ये तो पहला वाला लाइन तो घर के सब माता पिता बताते हैं, दूसरा लाइन नहीं को बताता है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगस्तु अकर्मणि. I'll give you an understanding what it is. Krishna is telling Arjun, because Arjun तो युद्ध करना नहीं चाहता था. He told, कर्मण्येवाधिकारस्ते. You have all rights to do your best. You have all rights to do your best. But ma phaleshu kadachana. You don't know what is the result. You can speculate. आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हो, लेकिन आप गारंटीड जान नहीं सकते. तो आपको क्या होता है, अगर आपके हिसाब से रिजल्ट आया, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो किसी मतलब के लिए करते हैं ना. आपकी इच्छा पूरी हुई तो आप सुखी हो जाते हो, और आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो दुखी हो जाते हो. सो कृष्ण इज सेइंग, लुक, व्हाट इज गोइंग टू कम हैज नथिंग टू डू विद द करंट एक्टिविटी दैट यू हैव डन. क्योंकि उसका जो ग्राफ है ना बेटा, टाइमलाइन, वो पहले से ऊपर से आया था. अभी जो तुम कर रहे हो ना, उसका टाइमलाइन बाकी कोटा में ऐड होगा. जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी जॉब कर रहे हो, तो आप जो जॉब कर रहे हो तो आपका समझो जो महीना भर का सैलरी है वो मंथ के अगले मंथ के फर्स्ट डेट को क्रेडिटेड आता है. बट अभी जो आप कर रहे हो तो आप सोचोगे अभी अभी पैसा आएगा, रोज का रोज मेरा दिन का भत्ता आएगा. तो वैसा नहीं है. दिस कर्मा इज अ वेरी सिंपल. वो कर्मा महाराज का टॉपिक नहीं, बट एज ए लीडर यू शुड नो दैट. आप देखो, एक धोनी को अच्छा कैप्टन क्यों मानते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने धोनी के बहुत सारे मैचेस जानबूझ के देखे ताकि उसका वो जो एक, क्योंकि देखो क्रिकेट में क्या है, अब कल 4 विकेट ऐसे ही गिरे, देखा, हमारे भी 2 गिर गए, ऐसा लगा हम भी हार रहेंगे. बाद में आए 2 खेले, अपने टुकु टुकु करके जीत गए. बट can you tell me one quality of Dhoni which has something to do with today's topic? Yes. Patience, very good. Cool-mindedness. वो दूसरे टीम मेंबर्स के क्वालिटीज को जानता है, उनको राइट टाइम पे यूज करना जानता है. डिसीजन मेकर, वेरी गुड. हाँ, यस, वो अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करता है. पप्पू से, पप्पू बॉलर से भी बॉलिंग करवा लेगा वो. यस, किस्मत भी बहुत अच्छी है. यस, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड. हाँ, कौन क्या बोला? सिचुएशन एनालाइजर, ये बहुत नजदीक है. मैं एक अच्छा और एक क्वालिटी खोज रहा हूं. आप लोग सब सही बोल रहे हैं. आई जस्ट एम वेरी नियर, यू आर नियर. वो इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो मुझे लगा, ऐसे तो आप सब कुछ गलत नहीं बोल रहे. राइट टाइम, राइट डिसीजन. डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट. ये थोड़ा नजदीक है. मेरे को भी कहीं रुकना पड़ेगा ना, इसलिए इसके मैं हाँ बोल के बताता हूं. देखो, आपको मालूम है कि अगले बॉल में क्या होने वाला है? नहीं. बोल्ड जा सकता है, 6 भी जा सकता है. बैट्समैन थोड़ी ऐसी आ गया है, उसको भी सिलेक्शन हुआ था, दूसरे कंट्री का है, ही नोज, वो भी मार सकता है. बट ही इज वेरी, उसका स्टडी पक्का है, उसका हार्डवर्क पहले अच्छा हो चुका है, हर प्लेयर का अच्छा नॉलेज रख चुका है वो, कि इसको यहां डालो, वो पहले बोलता है इधर डाल, इधर डाल. वो पहले आधा तो पीछे स्टंप के पीछे से मैनेजमेंट करता है, और उसके टेंशन में आगे वाला आधा हो जाता है, क्या यार ये इधर ये. सो उसका ध्यान से देखो, he has faith that even one ball, the next very ball can change the game. और उसके बहुत सारे वीडियोस जो अभी भी वायरल होते हैं, वो हैं जो लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल तक गए हुआ मैच था. बहुत सारे ऐसे मैचेस है जहां सबके ब्रेकडाउन हो जाता है, और इसको लास्ट बॉल तक मालूम है कि यू डोंट हैव टू लीव, यू स्टिल हैव टू डू द बेस्ट. तो लीडर होने के कारण आपके पास कई बार ऐसे समस्या आएंगी. यू विल फेस दैट थिंग्स आर लिटरली नॉट गोइंग द वे यू वांट. समटाइम्स यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन.
आपको लगता है मुझे भी किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है लेकिन you should have faith that the next morning when the sun rises, you don't know what is coming. So hold on. Don't jump to conclusions. And meanwhile, even in the worst mental, intellectual, physical situation, environmental situation, which are not, all the odds are there. But yet, one thing you can do is do the best. And when somehow you are victorious, आप जीत गए, you should not take the credit. Ma karma phala heturbu. If at all things worked your way, Arjun, don't take the credit. क्रेडिट लेने के लिए था ही नहीं, क्योंकि पहले से वो लगा हुआ था. तो क्रेडिट लेने लगेगा तो उस चक्कर में अगला डू द बेस्ट तुम नहीं कर पाओगे. और ये चीज भी आप देखो, वो एक मैच में ये करके, अगर आप देखो विराट कोहली, वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट ये एवरी बॉल मैं बोलता भाई एनर्जी बचा के रखो, हर बॉल में एक्सप्रेस कर दोगे तो यू नो, बट दैट्स ओके, दोस आर वैराइटीज. बट वी शुड सी, you have to do the best in every moment, even as a leader. In the worst odds, do your duty. Arjun didn't want to fight. अर्जुन ने पहले अध्याय में 150 रीजन बता दिए, ये होगा, मैं नहीं करूंगा. लॉर्ड बोले फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. अगर तू यहां से वापस भी गए ना, लोग थूकेंगे तेरे ऊपर. अपनी इज्जत का सोच, फिर भी लड़. वो इतना जो मैंने ज्ञान दिया है वो छोड़. You are bound by a duty. You should do your duty even at the deathbed. हमारे जो गुरुजी थे, जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं और फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, when he was 70 he went to America because his guru told him that if you don't go to America and preach, people will not understand our culture. Go and tell them. So he went, he preached till age of 81 and he came back to India. He had many foreign disciples. Even at the deathbed, his disciples are saying, Prabhupada, please rest now. Please don't speak and all. Bole, no. My teacher told me to translate the scriptures. So you get the dictaphone, even in the deathbed I translate, and he was translating. And he left his body translating. He said, a disciple is only known by his guru's instructions. So we all have an identity in society. Somebody is father, somebody is mother. Now you all are students. If you don't do your best, आप टीचर्स को ब्लेम कर सकते हो, आप पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हो, गरीबी का रोना रो सकते हो, अमीरी का हैंगओवर रो सकते हो. These all reasons will not help you even as an individual. आखिरी में आप एक disturbed personality रहोगे individually and socially. So as a leader, now what is your duty? You are a student. You are supposed to study certain subjects. Okay, you are a citizen, कुछ हमारे national requirements भी हैं. Do your best. Don't try to blame anybody in this world because first of all nobody is interested to take your blame. मराठी में एक कहावत है, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. कि you are the sculptor of your own. जो तुम बन रहे हो इसका और कोई मूर्तिकार नहीं. इसका मूर्तिकार कौन है? आप स्वयं हो. So what we can do as leaders? We should do the best. Next. Okay. Now this is a principle. इसको करने के बाद ना आप जिंदगी में हल्के हो जाओगे. जनरली लोग गांजे लेते हैं ना. मैंने जनरली मेरे को मालूम नहीं होता क्या है. मैंने एक बार बस एक रिकॉर्डिंग के लिए गया था आवाज.com का. वो पॉडकास्ट के लिए मेरा रिकॉर्डिंग ले रहे थे. तो उधर जो लेडी मेरा इंटरव्यू ले रही थी बीच बीच में जा रही थी. मैं बोला मैम आप एक ही बार ले लो ना, मुझे भी फिर निकल जाना है. तो उसके टीम मेंबर बोले नहीं मैम को थोड़ा ना बीच में जड़ी बूटी लगता है एनर्जी के लिए. मैं समझा नहीं. मैं बोला यार मैं आयुर्वेदिक आदमी हूँ, मैंने कभी कोई जड़ी बूटी नहीं खाई. इसने खाई तो मुझे समझा ही नहीं. तो मैं गया फिर ऐसे ही जाके मैं देखा है खाया जड़ी बूटी क्या खाती है. तो कुछ तो लेके अंदर जाके ऐसा हो क्या आती थी. मतलब बाप रे. बाद किसी ने बोला वो गांजा है. तो पीपल वांट टू बिकम हल्का. लोगों को क्या बनना है? हल्का. और हल्का बनने के लिए वो सबसे पहले आर्टिफिशियल मीन्स को यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं? यही सब हल्के हल्के चीजें ले लो ऐसा हो गया. ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं है ज्यादा लोगों को ऐसा. बट यू नो व्हाट एवर दे शो इन मूवीज एंड व्हाट एवर यू अंडरस्टैंड है कुछ इधर अभी हवा में नहीं. तो हम सबको हल्का होना है कि नहीं होना है? होना है कि नहीं होना है? हम सब जब जाते हैं घर में कुर्ता उतारते हैं, हल्का फैन के नीचे बैठते हैं, अच्छा लगता है. बर्डन गया. हम एक दुनिया में अपना चेहरा बनाते हैं. वी आर वेरी गुड. सेल्फी
है ना, वो लिपस्टिक लेके इधर तक रहता है, वो आईलाइनर यहाँ तक ना, बाल भी लाइक टोल्स एंड वोल्स, और बंदे जो अपने ऐसे, वो ढेरी भी आ गए तो अंदर लड़के अंदर है ना, बेचारे। हर कोई जो वो नहीं है वो दिखाने में लगा हुआ है। वेयर इज द बर्डन? व्हेन यू ट्राई टू पोज समथिंग और यू लिव अ लाइफ ऑफ समथिंग दैट यू आर नॉट, you will be in burden. Agreed or not? Agreed. Give me an example that you are not and you think you are, and that causes burden. Give me an example. Please, please don't worry. ऐसे सोचो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मैं I agree. ऐसे ना, मेरे को जितने जवाब मिले, I am literally satisfied and I am proud of you. Yes, ma'am. Sir, like my face is chubby, so I decide one definite pose so that my face looks more slim, so it gives me burden. Very good. आप एक काम करो, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज किया करो। कॉन्केव में बड़ा हो जाएगा। और वेरी गुड। एंड आई टेल यू, half of the burden is released when you say the truth. And don't worry, you are very nice. Be as you are. People don't, just by looking very charming does not make you a good person. A good person is a good person. Charm is the secondary thing. अभी देखो मैं काला हूँ, फिर भी लोग तालियां बजा रहे। इसका गोरा होने से, काला होने से कोई वो नहीं है। एक बार एक मुनि थे, I'll come back to this point, but again I'll tell you one simple story. एक मुनि थे, उनका नाम आपने सुना होगा, अष्टावक्र मुनि, one of the great saints of India. ये अष्टावक्र मुनि का अष्टावक्र इसलिए कहते थे क्योंकि इनके बॉडी में 8 वक्र थे। वक्र means bends. He was like this. He used to walk like this. He didn't walk like us. He had those deformities from his childhood. But he was such a scholar, brilliant. Everything above the sky, below the earth, सारा knowledge इस बंदे को था। Elemental science, physical science, spiritual science, big people used to go and fall at his feet. So एक बार क्या हुआ, राजा जनक, सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था, मिथिला के। आज भी आप जाएंगे जनकपुरी में उनका महल है। राजा जनक ने सोचा कि बस हो गया राज दरबार, अब मुझे जो है मुक्ति चाहिए। हर आदमी यही सोचता है, हो जाता है। ये जो हमारे जोश होते हैं ना, 40-45 तक रहते हैं, बाद में सब पता चलता है। जिस लड़की पे लाइन मारा, शादी किया, बाद में मेरा बात ही नहीं कहूँगा। उसको लगता है अरे भाई इसको मैंने इसलिए फांसा था ताकि मेरा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो, तो हो ही गया है, छोड़ेंगी तो भी आधा प्रॉपर्टी लेके जा सकते हैं, तो वो बेहतर है। उसके बाद देखना पति पति एक जैसे टोन में बोलते हैं, मम्मी पापा के जाओ ना, ये चाहिए, नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ। अरे शादी के शुरुआत में पहले दोनों अलग टोन में बात करते हैं, बाद में दोनों एक हो जाते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस है, और बच्चा जो आम आदमी पार्टी का कंफ्यूज है, किसको मैं सपोर्ट करूं। वैसे मैं ये सब इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैंने 18 साल में एक बार भी वोट नहीं दी, मैं देता नहीं। आई एम अ मोनार्क, आई बिलीव इन मोनार्की। मेरा राजा जिंदा है, तो मोनार्की इज मोनार्की, विल टॉक ऑन दैट समटाइम्स लेटर। बट यस, सो अष्टावक्र मुनि को जनक महाराज ने बोला कि मुझे ये गुरु चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो बिना गुरु के होना नहीं है। तो he said, जैसे अभी आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो ठीक है, आई एम टीचिंग यू। व्हेन यू गो टू सब्जेक्ट्स, देन योर टीचर्स टीच यू। व्हेन यू गो होम, योर पेरेंट्स टीच यू। दे आर ऑल गुरुज। गुरु डज नॉट मीन ओनली वन मैन। Guru means from where you get knowledge and from where you can bend your head and take more knowledge. That person is called Guru. So जनक महाराज बोले कि सभी ब्राह्मण सभा बैठा हो, जो विद्वान लोग हैं इनको बुलाओ, इनमें जो शास्त्रार्थ होगा, and whoever comes up powerful, I will accept his shelter. So all the Brahmins they thought, अरे राजगुरु बनेंगे, राज सब अपना मस्त प्रेस करके दही भात खा के सब बैठे थे सब। और ब्राह्मण लोग का पेट बड़ा होता है, खाने पीने में थोड़ा आओ करके रिलैक्स रहते हैं, दक्षिणा लेते हैं। ब्राह्मणस डोंट वर्क, their only duty is to give knowledge and not do job, rather just facilitate the society to function nicely. इसलिए वो selfless होते थे। Somehow or the other everyone has got into business, so the charm has reduced. Otherwise Brahmanas, that is why they are very intelligent. They are graced by God if they do selfless work. Anybody who works selflessly is graced by God, you can see that. तो सब बैठे थे, और जब अष्टावक्र मुनि आए, he was the last candidate to come in, तो everybody knew कि ये आए तो हम लोग हारेंगे, तो सबने मिलके उनका उपहास किया। उपहास लेकिन सबने किया। अष्टावक्र मुनि
such a nice person, he directly went to the राज गद्दी, जो गुरु जी का गद्दी था ना, जो लास्ट में अपॉइंट होंगे, उस पे जाके वो बैठ गए. अब बैठ गए, then जनक was like, अब मैं कैसे उतारूं भाई, ये लोग तो इनके लेवल का मैं नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं. And then he was like, चेस गुरुदेव आप असली हो गए, मतलब कुछ अभी शास्त्रार्थ चालू नहीं हुआ है, तो हम सोचे थे कि शास्त्रार्थ हो तब आप. बोले शास्त्रार्थ? अरे जो मेरे चमड़ी को देख के बैठे यहाँ पे हंस रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक का ज्ञान हो ऐसा मुझे नहीं लगता है. इसलिए यहाँ मुझे कंपटीशन ही नहीं लगा और प्रहर का घंटा तो बज गया. अब इसके बाद तो कोई कॉम्पिटिटर आएगा नहीं. तो हम बोले जब कोई है ही नहीं तो हम बैठ गए. तो अरे वाह, दैट वाज अष्टवक्र मुनि. सो वी शुड नॉट लुक एट एनीबॉडीज बॉडी एंड डिसाइड ये अच्छा है बुरा है, वो गलत जजमेंट है. यस, सो वी आर कमिंग टू द पॉइंट. अगर हमको हल्का फील होना है तो यस, वन ऑफ द थिंग्स इज टू एडमिट. और एक एग्जांपल बताओ. यस, फिर हम हमारे पॉइंट पे आएंगे. यस यस, समबडी. अगर हमको हल्का फील करना है, हम जो हैं वो नहीं है और हम दिखाते हैं, ये मैंने पूछा था. यस, प्लीज समबडी, वन मोर पर्सन, रेज योर हैंड और स्पीक अप. यस प्लीज, डोंट वरी. Yes? Yes. Letting everything go rather than holding on to it. Yes, rather than holding, let it go. Okay, I'll tell you. You are whole life you are thinking you are something and you are not. And that is the whole burden. I'll get you a simple example. आप में से कोई एक लड़का या लड़की यहाँ आ सकता है तो I'll do this experiment with you. यहाँ प्लीज पधार सकते हैं. इसको फेमस होना है, ये नेता बनेगा. देखना, इसका कोई भविष्य नहीं. इसका सर प्लेसमेंट मत करवाइएगा क्योंकि ये सीधा वहां का वो बन जाएगा, डायरेक्टर के चक्कर में ही. आ जाओ, कोई बात नहीं. गुड. अभी मैं इससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके आंसर देखना. डोंट वरी, मैं कोई इज्जत नहीं निकालता यार, मैं इज्जत बढ़ा रहा हूं. ये बाल किसके हैं? When I say whose are these hairs, what is your answer? Simple, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Simple, मेरा. क्या बोला? मेरे हैं. When you say something मेरा means it is associated to you, it is not you. Agreed? Agreed? किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को डिसएग्री कर रहा है? एक भी आदमी, लॉजिकल आदमी? अरे भाई तू बैठ, तू हर समझ में नहीं आया? मैं एक बार रिपीट करता हूं. मैंने इनसे पूछा whose are these hairs, किसके हैं ये बाल? इन्होंने कहा मेरे, mine. इंग्लिश में mine, they are mine. तो मैंने ये समझाया, whenever you say something as mine means it is your possession, it is not you. Agreed? Means if I remove these hairs, does he still exist? Yes. मेरी तरह exist करेगा. Now, whose are these eyes? It's mine. It's mine. मेरा है. Means हम निकालेंगे नहीं. Let us say, लेकिन आंख नहीं भी रहे तो क्या ये व्यक्ति रहेगा? Does his existence still there? Whose are these hands? बेचारा बहुत डिसिप्लिन में खड़ा है. टीचर भी आश्चर्य करोगे कैसे खड़ा है. Whose are these hands? This is mine. This is mine. Means if let us say tomorrow due to certain services the hands are removed, does it still exist? Yes. Whose is this body? What is he implying? This body is mine means I exist even if my body is not there. Agreed or not? Yes, sir. Whole life you are trying to do makeup of your you are trying to decorate things which are yours and not you. आपको मेरा डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत बहुत अंदर लेके जा रहा हूं मैं हाइप नहीं मार रहा हूं. नॉर्मल मोटिवेशनल स्पीकर हाइप मार के या करके भॉइस देता है, वो नहीं है. अपने को अंदर जाना. अपना जितना रूट पेड़ का अंदर जाएगा उतना लंबे आंधी तक तूफान को तुम खड़े हो सकते हो. ये जैसे लड़कियां मेकअप करती है ना, लोग जो भी. अब ये जो है जैसे ये भी है दाढ़ी वाड़ी करके कुछ तो करता होगा बेचारा. He is trying to decorate, he, she, anybody. We all are trying to decorate something that we just possess and not we. इसलिए आप कितना भी मेकअप कर लो,
कितना भी बैंक बैलेंस बना लो, कितना भी हेल्दी बॉडी बना लो, स्टिल एट द एंड ऑफ द डे देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग, एंड दैट मिसिंग थिंग आई विल टेल यू. अब तुम नीचे जाओ. You all are missing the core factor, our core existence, who we are. So there was a simple experiment conducted in, I think so, Pennsylvania University only. What they did is, they raised the hand of a guy. एक बंदे का हाथ ऊपर कर दिया. हाथ ऊपर किया तो उसका एक न्यूरॉन जनरेट हुआ. क्या जनरेट हुआ ब्रेन में? न्यूरॉन. न्यूरोजेनेसिस वो साइंस में से किया था. हाथ से न्यूरॉन जनरेट. उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी करके they applied an external impulse to generate that particular neuron, and when that was generated, his hand automatically went up. Right? So they came to a conclusion that we are not what you see. There is something within us which generates that impulse. And इसलिए हम हमारा ज्यादा समय क्रेडिट लेने में लेते रहते हैं, जबकि ड्राइविंग प्रिंसिपल कोई और है. और ऑब्वियसली वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट द ड्राइविंग प्रिंसिपल इज द सोल, द स्पिरिट सोल. इस पे आयन स्टीवनसन, बहुत सारे रिसर्चर्स ने रीइंकार्नेशन, ये सब सब्जेक्ट्स पे किया था, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू दैट सब्जेक्ट एनीवेज. रिमेंबर आवर एंटायर लीडरशिप, जो ही हम ईगो ले आते हैं, हमारा कब कबाड़ा होता है? किसी भी लीडर का कब टाइम खत्म होता है? जब वो क्या करता है? देखो, अब जो भी है, प्रधानमंत्री इससे भी पहले बहुत हुए, अभी भी कुछ हैं. पहला काम क्या करते हैं वो? भले मेकअप पहन ले, करोड़ों का जैकेट पहन ले, लेकिन बोलते हो क्या बोलते हैं? मैं आपका प्रधान सेवक हूं. जो ही बोल देंगे मैं तुम्हारा माय बाप हूं, तो फिर वोट क्या आ जाएगा? कहीं भी जा सकते हैं वो. सेवक है, सेवक है. तो you, when you live in illusion, when you start thinking I am this body and everything associated with me in this name and fame is mine, तो naturally ये ईगो आपको डुबा देगा. ये ईगो आपको, ये सब मेरा है, आप सोचने में बेंड डाउन हो जाओगे. लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, किसी का दिया हुआ है. जैसे आपका नाम है, लेट्स से आई टेक एन एक्सपेरिमेंट. तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की, ये वाला, ये लड़की, ये लास्ट में समनदीप नाम है आपका. तो लेटर से आपका नाम समनदीप है, तो क्या आप समनदीप है? हाँ. आप 21 दिन की थी तो समनदीप थी, 20 दिन की, 5 दिन की. आपका नाम कब गिरा आपको भी पता नहीं. घर वालों ने कभी रखा होगा ना, सब दादा दादी सब बड़े लोग आते हैं, नाम रखते हैं. तभी तो आप कुछ नहीं थी, तब आप इस हवा में देख रहे थे. और सब लोग रिलेटिव्स आके बोले समनदीप समनदीप, और बाद में अचानक से याद है, अरे मैं ही समनदीप. So even the name given to us is an identity attached. It is still not you. Obviously, अब घर जाके मत बोलो I am not समनदीप. वो बोलेंगे भाई वो प्रोफेसर को खोजो जो इनको बुलाया था. तो हमारे दो रोल्स होते हैं, एक है स्पिरिचुअल जिसमें हम इसमें हट सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड इज, जैसे हम ड्रामा करने आते हैं ना, स्टेज पे लोग ड्रामा करते हैं, कोई ड्रामा रोल होता है, तो कोई उसमें हीरो बनाए, कोई राजा बनाए, कोई मंत्री बनाए, तो स्टेज पे वही बनना पड़ता है. उतर के तुम बोलो मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूं, लेकिन इधर आके आपको बोलना पड़ेगा मैं राजा. तो वैसे हमारा जो नाम है वो लेके दुनिया में चलना ही पड़ेगा, बट वी शुड नो द रियलिटी. नाउ वी विल बी रिलीव्ड, लाइक शी टोल्ड, लेट गो थिंग्स, बट वेयर टू गिव द थिंग्स. कोई लेना भी चाहिए ना. अच्छे और बुरे का क्रेडिट लेने वाला चाहिए. अच्छे का क्रेडिट लेने तो लोग खुद ही आ जाते हैं. आप अच्छा काम करो, बोले ये बच्चे को हमने ही पढ़ाया. एक बार एक एयरपोर्ट पे एक स्पेशल बोइंग आया था, तो उस कॉलेज के डीन, एचओडी, प्रिंसिपल सबको बुलाया गया फॉर द फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट वॉयज ऑफ दैट एयरक्राफ्ट. वो कॉलेज के प्रोफेसर बोला हम सबको आपने बुलाया. वो एयर होस्टेस बोली सर, इट इज आवर प्राउड मोमेंट to announce that the first flight is specially for you because this aircraft has been designed by one of your students. सारे टीचर भाग गए. बोलते सर कहां जा रहे? अरे भाई हमारा बंदे ने कि क्रैश हो जाएगा. नहीं, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बोला तो कोई भरोसा नहीं है, हम जानते हैं हमारा सबमिशन कैसे होता है, रहने दो. वो चला गया. लेकिन जो डीन थे वो बैठे थे. बोले सर आपको कोई डर नहीं?
देखो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मुझे इतना गारंटी इसका स्टार्टर भी चालू है। जस्ट जोक। तो क्रेडिट लेने के लिए तो कोई भी आ जाएगा। अब अच्छा काम करो, देखो सब लोग आ जाते हैं, एक साइकिल वाले का बच्चा बन गया है तो उसके लिए सब लोग उसको उठा लेते हैं। और जब वो रात भर घिस रहा था तो उसको किसी ने थोड़ा भी तेल नहीं दिया, लाइट नहीं दिया, अपना घर नहीं दिया, मेरे फैन में बैठ के पढ़ो, नहीं। जब बन गए तो उसको लोग चढ़ लेते। लेकिन जो बैड क्रेडिट है ये तो कोई नहीं लेता, ये तो अपना बैड भी तुम पे थूक पे ही चला जाएगा। देन दिस इज द प्रिंसिपल दैट विल हेल्प यू एज अ लीडर। This is the principle that will always help you. You can repeat this verse after me. This is the verse of Ishopanishad. You can always go to Google and search Ishopanishad. Repeat after me. Ishavasyam idam sarvam yad kincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjitha magridaha kasya svidhanam. This verse means, देखो एंटायर वेदास में ना, वी आर नॉट, देयर इज नथिंग कॉल्ड, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सब रेवलेशंस हैं, इसमें कोई तेरा मेरा वाला बात नहीं। इसको जो अप्लाई करेगा उसको, ये साइंस है, वेदास आर फुल ऑफ साइंस। वो कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, ओ माय डियर लिविंग एंटिटी, हमसे बात हो रहा है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इधर जब हम पैदा हुए थे, ये अमृतसर या पंजाब हमने पैदा किया था, वो महाराष्ट्र हमने पैदा किया था क्या? हम आए तो भूमि आ गई ऊपर? नहीं, ये पहले से था। हिंदुस्तान पहले से था, पाकिस्तान पहले से था, चाइना पहले से था, सब पहले से है। लेकिन हम यहां आए हैं और हम ही जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे यहां जो पेड़ उगते थे पहले भी उगते थे, वो आगे भी उगते रहेंगे, पहले भी उगते रहते थे। तो यू शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज that whatever you have, all the qualities that you have are gifted by God to you. जैसा अभी इन्होंने God's grace कहा था, it's a very high word, इसको डायरेक्ट भी समझना आसान नहीं है। लाइक आपको मैं बताता हूं, कोई अच्छा गाता है, अगर वो उसका ही आवाज है, गॉड का गिफ्ट नहीं है, तो बुढ़ापे में नहीं गा सकता। वो बूढ़ा, कोई होना चाहता है बूढ़ा, हो जाता है। अभी आपके स्किन टाइट है, बाद में हो जाएगा, फिर पैसा डाल के आप उसको टाइट करेगा सर, फिर वो अंदर और झुल जाएगा, फिर एक दिन नंबर लग जाएगा, 4 लोग उठा के ले जाएंगे। हाँ, आजकल तो वो भी नहीं लेके जाते, एम्बुलेंस को फोन करते ले जाइए, चले गए हैं। तो वी ऑल शुड नो दैट वेदर गुड वॉइस, गुड इंटेलिजेंस, गुड मेमोरी, good physical strength, good economical capacities, these all are gifted and the source is the Lord himself. So this verse says, if you don't give the credit back to whom it belongs, you will be considered like a thief. इसलिए आपको वो बर्डन होगा। आप किसी और का मोबाइल चुरा के अपने पॉकेट में रख लो, आपको क्या होगा? आप एक काम करो ना, किसी का भी नोट्स चुरा लो, फॉरगेट अबाउट मनी एंड ऑल। जैसे किसी के असाइनमेंट हम लेके आते ना, तो टीचर को जब दिखाने जाते तो अंदर टेंशन रहता है, कोड्स तो मैंने लिखे नहीं है, अब पूछ लिया तो धक 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 धक। किसी और के असाइनमेंट्स करते हैं तो मैंने एक प्रैक्टिकल ऐसे पास किया था, सच बोलूंगा, एक प्रैक्टिकल का लैंग्वेज मुझे नहीं आता था, कोबोल। तो मुझे एक्सटर्नल टीचर आया तो बहुत दया खाए मेरे पे, बोले क्यों बैठे? बोला सर मुझे आता ही नहीं, मुझे इसका सिंटैक्स ही समझ में नहीं है। तो बोलते एक काम करो, साइड वाला उठ गया, उसमें से अपना नाम लिख के प्रिंट आउट निकाल के चले जाओ। मैं बोला सर आप इस धरती पे वो पवित्र आत्मा है जो हम जैसों को आगे ढकल सकते, नहीं तो बहुत बुरा हाल है सर। को बोल के सिंटैक्स बहुत लंबे लंबे होते थे, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड इट, लंबे लंबे होते थे, वो समझ में नहीं आता। एक तो इंग्लिश ठीक से नहीं, उसमें लंबा लंबा कोड। सो यस, वी शुड गिव द क्रेडिट टू द लॉर्ड अल्टीमेटली। बात एग्रीड है? दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लीडर। आप देख लो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, कोई भी पावर है ना, ज्यादा दिन डिक्टेटर्स, ज्यादा एनार्क्स, दे कुड नॉट रूल मच। ये सिकंदर भी आया था, भाग गया पीछे, नहीं कर पाया। इधर इंडिया में तो रूल करना ऐसी मुश्किल है, हर 10 किलोमीटर पे टोन, लैंग्वेज, पब्लिक चेंज हो जाता है। हाँ, समझ में नहीं आता है। वो अलेक्जेंडर आया था, जब इंडिया में आया था, वो गया था, उसको मगध पे राज करना था। यू नो व्हाट इज मगध? मगध मीन्स पाटलिपुत्र, बिहार। अब बिहार पर राज करिएगा ना।
तो पनुआ खा कर थूक के गिरा दे। It was not a ordinary city. It was a very difficult city. तो पाटलिपुत्र में उन्होंने बताया, अरे नहीं जीत सकते तुम। उन्होंने बोला जितने एक हाथी के नीचे 1000 घोड़े, एक घोड़े के नीचे 1000 पैदल लोग होते हैं, और जितने हमारे पैदल है उतने उधर हाथी है। सिंध को पार करो, गंगा को पार करो, फिर पटना का वो बड़ा गांधी सेतु पार करो, मुश्किल है। हाँ, यहाँ भी है जाम, ऊपर से ट्रैफिक जाम, ऊपर से वो पोल ऐसे से हिलता है वो गांधी सेतु। आप लोग गए? हमने फिर बिन टू गांधी सेतु, ऐसा ऐसा वो गाड़ी ऐसा होता है, ड्राइवर लगता है कि अभी गिरेगा, लेकिन फिर हम लोग को दिलासा देता है ड्राइवर, नहीं नहीं जर्मनी लोगों ने बनाया है, ये नहीं टूटेगा। हम इंडियंस को दिलासा है, किसी फॉरेनर ने बनाया तो अच्छा होगा। एक बार एक साइंटिस्ट था, वो आया, ये साइंटिस्ट और इंडियंस का कल्चर में देखो कैसा रहता है। वो फॉरेनर साइंटिस्ट, उसको पीएचडी करना था, तो उसको टीचर ने बोला कि देखो अगर तुमको कुछ वियर्ड चीज चाहिए रिसर्च के लिए तो वो हमारे कंट्री में नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो टू इंडिया, गो देयर एंड देन यू कैन मेक इट। माय गॉड कम ऑन। वो आया, इंडिया में आया, वो दिल्ली उतरा, वो बोला नहीं दिल्ली भी सिटी है, थोड़ा रिमोट में जाते हैं, थोड़ा पटियाला वटियाला इस साइड जाएंगे। जाते थे उसने बीच में ढाबे पे रुका, एक जिलेबी तल रहे थे, जिलेबी होता ना, वो तल के जिलेबी दिया उसको। उसने देखा, ओ माय गॉड, बोथ साइड्स क्लोज्ड, thick syrup in the thin filament, how is it possible? Research. Thick syrup and thin filament, both sides closed, गया कैसे और होल्ड कैसे कर रहा है ये? बस ये मेरा रिसर्च है। उसने बोला आई डोंट नो एनीथिंग, इसको पूरा अच्छे से पैक करो। पूरा स्पेशल फ्लाइट से वो गया अमेरिका, उसको ट्रे में फ्रिज में रखा, बोला सर आई हैव गॉट द सब्जेक्ट ऑफ माय रिसर्च। बोले व्हाट? तो उसने खोल के दिखाया, सर ये देखो ये वाला रूल है, दोनों साइड्स एंड क्लोज्ड है इसके, ये है अमेजिंग है सर, और गोल गोल है सर, अमेजिंग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी नहीं है सर अमेजिंग है। बोले पागल है तू, इसको रिसर्च करने में हम बूढ़े हो जाएंगे। बोले क्यों? अरे मैंने भी एक आइटम लाया था इंडिया से। तो बोले सर क्या था? बोले इधर, तो अपने फ्रिज में लेके जाता है, वो ट्रे खोलता है, बोले दिस ऑल 3 साइड्स क्लोज्ड लाइक पिरामिड, potato going inside, how? And they call it samosa. मेरा दिमाग में गया भूसा, I don't know. बोला मैं बुढ़ा हो गया, अभी तक पर रिसर्च हो रहा है, चिपका कैसे? तो इन लोगों के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट यस वी शुड लर्न टू नो दैट वी हैव टू गिव द क्रेडिट। ये हमारे कल्चर में होना चाहिए, ये हमें किसी ने सिखाना नहीं चाहिए। हम देख के समझ सकते हैं कि एनीथिंग गुड इन दिस क्रिएशन कैन नॉट कम बाय इट्स ओन, देयर इज समबडी, यू कैन कॉल हिम बाय एनी नेम, यू कैन लव हिम एज यू वांट बिकॉज ही इज कंप्लीट एंड ही इज कंप्लीट, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यू वांट हिम एज यू वांट हिम, यू लव हिम एंड ही इज देयर, सो यू शुड गिव द क्रेडिट टू द लॉर्ड, देन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। नेक्स्ट, so if you want to be a good leader, if you leader किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? टीम के लिए। आपको बनना है इसलिए लीडर। who are you leader for? you represent somebody, right? Yes sir. you represent a group of people, so always remember the people are more important. Who are more important? People. The people. So there is one story which I can tell you, but you can click. तो इसमें और एक वो पार्ट आएगा। So when you serve the people, your motive should be selfless. If you are selfish, तो वहीं अटक जाएगा, लीडरशिप नहीं हो आपका, मतलब आप उसको छीनना चाहते, ऐसा है। Lord Ram, when he was actually taking vanvas, all of you must have known that माँ सीता and Ram and they were all going, Lakshman, वो जा रहे थे, तो उनको उनके जो मंत्री थे सुमंतरा, वो छोड़ने जा रहे थे। तो जब वो छोड़ने जा रहे थे तो जितना भी जनता था उनको रोक दिया गया था, बैरिकेटिंग, कि मत जाइए, मतलब क्योंकि नॉट बिकॉज आप राम जी को ट्रबल करेंगे या कुछ करेंगे, बिकॉज भगवान राम इतने ओब्लाइज थे टू हिज पीपल दैट ही कुड नॉट इवन लिफ्ट हिज फेस, वो ऐसा अंदर मतलब ऐसे करके जा रहे थे, बिकॉज इफ ही लुक्स एंड समबडी सेज नहीं मत जाइए, ही कांट डिनाई देयर ऑर्डर्स। ये एक लीडर होता है कि मैं आपके लिए मेरा सर्वस्व बलिदान कर दूंगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर।
तो ये वो इट वाज सो टचिंग. One more story which actually inspired me, and I have always been implementing that in my life. Obviously, I don't know exactly where this happened, but one of my seniors told me this story. Especially there was one time when there were certain decisions to be taken in life. So he told me this story and liked it, and I really liked it. This story of 5 kings. You will remember this. इसलिए मैंने मेरा book अभी लाया नहीं. Somehow मैं नहीं जानता था कि I brought my bundles here. I'll courier some things here, then maybe sometimes we can distribute to the students. I have written a book called Satya. There are 15 topics and they're well explained, especially to all of you. All the concepts will be clear. So, in the binding of the book, I have written the people and the message. तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं क्यों लिखा है और वो इस स्टोरी से इंस्पायर्ड है. So, ये 5 kings का स्टोरी है. इन 5 kings में लड़ाई होता था क्योंकि हर किंग का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक किंगडम होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं और हर एक के प्रायोरिटीज अलग होते हैं. कोई थीस्ट होता है, कोई एथीस्ट होता है, कोई सेल्फिश होता है, सब बहुत सारे. लेकिन इन सब का असर किस पे गिरता है? पब्लिक. द कॉमन मैन सफर्स. आज ये डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है? हर मंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है, हर एक को प्रोमिसेस करने पड़ रहे हैं, बट इट इज नॉट इजी टू फुलफिल. वो जब वहां जानते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जनता को उल्लू नहीं बने तो वोट भी नहीं डालेगा. तू सोचता है ईमानदारी से अच्छा मैं झूठ बोलूं और मैं मेरा काम करूं. So that is why to expect things from people in democracy is more tough. In monarch also it is tough, but at least in monarch there is one man who takes responsibility. That is good. हमारा क्या आज इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कल वो मंत्री हो गया, सब अपना अपना हाथ धो के चले गए, हम लोग को मार के चले गए, ऐसा हो जाता है. So these kings हमेशा उनमें फाइट होता था. तो फाइट होता था तो उनमें से एक किंग था, वो थोड़ा पीपल प्रेमी था. तो उसने सब राजाओं को साथ में लाया कि बोले देखो एक रूल बनाते हैं, आज से ना हम लोग पब्लिक को तकलीफ नहीं देंगे, हम लोग अपना अपना राज्य करेंगे और हम कुछ लॉज बना लेते हैं MOU टाइप, सो दैट वी वर्क टुगेदर एंड फंक्शन नाइसली. तो उसमें फिर सब हो जाने के बाद एक पॉइंट आया कि व्हाट इफ समबडी अपराइट रिबेलियन बागी खड़ा हो जाए और वो बोले कि मुझे राजा बनना है, तब तो हमारे सिस्टम में चैलेंज हो जाएगा. तो बोले व्हाट अबाउट हिम, उसके लिए क्या प्रोविजन है? सो दे क्रिएटेड अ प्रोविजन. फर्स्ट एनीबडी हु वांट्स टू बिकम अ किंग, ही कैन बिकम अ किंग प्रोवाइडेड ही शुड फर्स्ट ज्वाइन द आर्मी. जो भी उस कंट्री का आर्मी है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ही शुड बी ए सोल्जर मिनिमम. अब जब वो सोल्जर बन जाए तो अपने सेनापति के साथ 1-to-1 कॉम्बैट कर सकता है. सेनापति हार गया तो द पोस्ट विल बी स्वैप्ड. सेनापति विल बिकम द सोल्जर, सोल्जर विल बिकम सेनापति. एंड इफ ही वांट्स, वंस ही बिकम्स सेनापति, ही कैन हैव 1-to-1 कॉम्बैट विद हिज किंग. And if he wins with his king, he can go to the second. If he wins with second, he goes to third, fourth and fifth. The fifth king was the Samrat. Samrat means emperor, जो सारे राजाओं को ऊपर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है. So once he becomes the emperor, तो emperor से तब लड़ेगा जब वो चारों को हरा के आया है, तब वो emperor बनेगा. तो ठीक था, एक उसमें से निकला बागी, उसको एकदम था, उसने सारा ट्रेनिंग ले लिया कि सबको हराना है, उसने सारे sword fight से वो सारे मूव्स सब सीख लिए. इतना करने के बाद वो गया और अपने सेनापति को डिफीट किया, अपने राजा को भी डिफीट किया. तो राजा बोला तुम बैठो पद पे. बोले नहीं नहीं सर, मेरे को सम्राट ही बनना है, राजा वाजा भी नहीं बनना है. तो बोले ठीक है. उसने साइन मार के अपना स्टैंप लगा के कंट्री का दे दिया. वो गया, फिर वो दूसरा जो बंदा है राजा, वो लड़ाई किया, वो हार गया. वो बोला नहीं मेरे को सिर्फ साइन चाहिए, मेरे को सम्राट ही बनना है और उसे नीचे नहीं, वो भी दे दिया. थर्ड बोला जब तेरे को सम्राट ही बनना है तो क्यों टाइम पास करेगा, जा इवेंट रखूंगा, पैसा जाएगा, मैं हारूंगा, मेरी बेइज्जती. वो ऐसी दे देता है. वो चौथे के पास जाता है, चौथा बोलता है तुझे क्या क्या आता है, तो सारे स्टेप्स बताता है, मुझे आते हैं. बोलता है तुम्हारी जनता के बारे में क्या राय है? तो जनता को क्या, एक बार जो ऑर्डर दूंगा लोग फॉलो करेंगे, ऐसे बहुत कुछ उसने बताया. तो बोले तुम जानते हो ना सम्राट का क्या रोल है, अगर कोई सम्राट बन जाए तो हिज ओनली फोकस शुड बी. तो उसने साइन मार के दिया कि मैं भी हार गया. द पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन यू, मी, द किंग एंड द किंगशिप. मेरे पीछे रिपीट करिए, द पीपल are more important than you, me, king and the kingship. ये उसने साइन मार के दे दिया. बोला जा वो सम्राट से लड़ के जा. ये याद रखना, लेकिन उसको ये याद रखना, द पीपल. ये जाता है और सम्राट के मंत्री को दिखाता है कि मैं सारे लेके आया हूँ ताम्रपत्र, ये 4 राजाओं को मैं हरा चुका हूँ. मैं सम्राट को बोला तैयार होके आएगा. तो सम्राट सारे आर्म्स वार्म्स लगा के आता है कि इतना तक पहुंच गया आदमी. पहुंच गया तो बोलता है मुझे दिखाओ. देखता है तो पहला 2-3-4 साइन है, चौथे में साइन देखते हंसता है, बहुत हंसता है. बोले तू मुझे इतना ही बता कि तू चौथे से लड़ाई किया कि नहीं. तो ये थोड़ा डर जाता है कि अगर मैं बोलूंगा बिना लड़ाई के साइन लिया तो हो सकता है इधर मेरा कैंसिल हो जाए. तो झूठ बोलता है, बोलता है कि नहीं चौथे को भी हरा दिया. तो वो दे रहे ताम्रपत्र पकड़. बोले सुन,
कि जितने मार्शल आर्ट्स में जितने गुरु है ना, वो चौथे से सीख के जाते हैं। आज तुझे ये पता ही नहीं है कि मैं सम्राट नहीं हूँ, सम्राट वो चौथा है। वो एक सिर्फ डमी को ऊपर बिठाता है जो मैं हूँ, और तू यहाँ बैठेगा भी ना, रूल उसी का चलता है, क्योंकि सारे टैक्सेस वहीं जाते हैं। ये गाजर उसने तेरे जैसों के लिए रखा था जो लोगों को उल्लू बना के ऊपर आना चाहते हैं, और ये तेरे को नीचे लिखा नहीं, तू पढ़ा नहीं। आई अब तू उधर से जाएगा, या तो मेरे हाथ से मार खाएगा या उसके हाथ से मार खाएगा, और नहीं तो तू सुधर जाएगा। तो बोले सर वो क्या लिखा है? बोले लिखा है द पीपल, ये जनता तुझसे और मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर मोर वैल्यूड देन एनीबडी एल्स, दैट इज व्हाई वी आर लीडर्स। इतना बोलने के बाद वो मंत्री गुस्सा हो जाता है कि ये झूठ बोल के आया है। बोले ये सोल्जर भी नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा मतलब सोल्जर भी नहीं हो सकता, ये इज नॉट वर्थ बीइंग अ सोल्जर आल्सो। तो 100 सोल्जर्स को इसको मार डालो। ये इतना पावरफुल होता है कि अकेले 100 लोगों को मार सकता है, he can kill 100 people but he does not kill, he gets killed। तो राजा बोलता है तुमने ऐसे क्यों किया, डिफेंस क्यों नहीं किया? बोलते क्योंकि ये 100 है, मैं 1 हूं, और वैसे भी मैं झूठा हूं। So that is the difference. So when you become a leader with this principle, the people, then even if you sacrifice, you will be glorified. And if you just pursue your selfish motives, even if you win, you will not be glorified. आप देख लो भगत सिंह कितना जिए, मुझे बताओ। लेकिन आज हर कार में, हर दिल में उनका नाम लेते एक छाती चौड़ा हो जाता है। मैं तो